Hello everyone, welcome back to the class and this is me Ankita Kabra. So आज हम पढ़ेंगे stereo isomerism. In our last videos we already completed structural isomers, right? So stereo isomers में हम पढ़ेंगे कि what are stereo isomers. There are two types of stereo isomers, that is geometrical isomerism and optical isomerism, right? Structural isomers में क्या difference होता है, that atoms have same formula but they differ in their connectivities, right? तो structural isomers are also known as constitutional isomers. There are four types of structural isomers जो हम already पढ़ चुके हैं: ionization isomerism, coordination isomerism, linkage isomerism, hydrate or solvate isomerism, right? So before starting what are stereo isomers, we quickly revise the structural isomers which we had already studied. Okay, so ionization isomerism में हमने पढ़ा था that they give different ions in solution, right? मतलब the ions are different in coordination sphere and ionization sphere, or we can say there is an exchange of ions in coordination and ionization sphere. तो यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देख सकते हो इन कंपाउंड नंबर 1 एंड इन कंपाउंड नंबर 2 SO4, यहाँ पे SO4 जो आयन है that is in ionization sphere, और यहाँ पे the same SO4 dinegative is in coordination sphere. यहाँ पे Br is in coordination sphere, और in compound number 2 Br is in ionization sphere. So there is exchange of ligand, you can see. So अगर ऐसा example आपको कहीं पे दिखता है तो they are ionization isomers of each other. Okay. Second हमने देखा था hydration isomerism. इसमें हमने देखा था water molecules H2O, if they are acting as a ligand, if they are present in coordination sphere, or whether they are acting as a free solvent molecule or they are present in the ionization sphere. Okay, so अगर कहीं पे आपको ऐसा कुछ compounds दिखते हैं तो they are hydrate isomer or solvate isomer. Okay, see in example number 2 यहाँ पे H2O is acting as a ligand. This is directly bounded to central metal ion. Okay, that's why it is in coordination sphere. और यहाँ पे same H2O is in ionization sphere. So here H2O is free solvent molecule. यहाँ पे H2O ligand नहीं है. तो अगर ऐसा कोई कंपाउंड आपको दिखता है तो दे आर हाइड्रेट आइसोमर्स. फिर हमने देखा था लिंकेज आइसोमेरिज्म. इसमें देयर इज अ डिफरेंस इन लिंकेज, राइट? एम्बिडेंटेड लिगैंड या आइसोमेरिज्म शो करते हैं. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कोबाल्ट इज बाउंडेड टू नाइट्रोजन एटम एंड यहाँ पे कोबाल्ट इज बाउंडेड टू ऑक्सीजन. सो डोनर एटम डिफरेंट रहेंगे, तो अगर डिफरेंट डोनर एटम आपके मेटल आयन को अटैच है तो लिंकेज डिफरेंट हो जाएगा. ओके, डिफरेंट डोनर एटम से अगर मेटल आयन कोऑर्डिनेट करता है तो लिंकेज अलग हो जाएगी और इसके वजह से उसे बोला जाता है लिंकेज आइसोमर्स. ओके, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में हमने देखा था कि जो कीटैन और एनायन होते हैं वो दोनों ही कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं, दोनों ही कोऑर्डिनेशन पेयर होते हैं, राइट? तो इसमें देयर इज एक्सचेंज ऑफ लिगैंड. हियर यू कैन सी, राइट, देयर इज एक्सचेंज ऑफ लिगैंड इन दैट. सो दिस टू कंपाउंड्स आर कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. ओके, आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, राइट? अनटिल अनलेस वो क्लियर नहीं होगा तो आगे के कोई भी चीज क्लियर नहीं हो पाएगी. ठीक है, so let's get started with our today's topic, that is stereoisomerism. Now stereoisomerism is the isomerism is the they are the isomers which have same chemical formula, they have same bonds, right, but they differ in their spatial arrangement. Okay, space में जो उनकी arrangement होती है उसमें difference होता है. So that's why they are known as stereoisomers and the phenomenon is known as stereoisomerism. Now ये अभी हम सबको पता है कि there are two types of stereoisomers, geometrical and optical, right? Geometrical isomerism is the phenomena जिसमें हम isomers के complex की अगर बात करें तो they are geometric isomers of each other, which is also known as diastereomers. Okay, now किस complex में geometrical isomers फॉर्म हो सकते हैं या फिर किस कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको देखने मिलेगा? सो दैट विल शोन बाय हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस. अभी हमने पढ़ा था होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक. होमोलेप्टिक में क्या होता था, जहाँ पे सेम काइंड के लिगैंड्स होते थे, मतलब सारे लिगैंड्स आर ऑफ सेम काइंड और ऑफ वन काइंड, राइट? सिंगल टाइप के लिगैंड होते थे लाइक NH3/6. और हेट्रोलेप्टिक में क्या होता था, देयर आर मोर देन वन टाइप ऑफ लिगैंड, राइट? NH3/4 Cl2 इस तरीके का, मतलब दो तरह के अगर लिगैंड होते हैं
या फिर 2 से ज्यादा तरीके के लिगैंड अगर होते हैं तो हम उसे बोलते हैं हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, राइट। सो इस तरीके के कॉम्प्लेक्स में हमें क्या देखने मिलेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। फाइन। अभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में यू कैन सी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट, मतलब जिस तरीके से लिगैंड्स अरेंज है अराउंड योर सेंट्रल मेटल आयन, सो उसके अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई करते हैं वेदर दैट आइसोमर इज सिस आइसोमर और वेदर दैट आइसोमर इज ट्रांस आइसोमर। ओके, नाउ सिस आइसोमर हम किसे बोलते हैं फिर, तो जो आइडेंटिकल लिगैंड हम कंसिडर करते हैं अगर वो एडजेसेंट पोजीशन पे है तो दैट इज सिस आइसोमर। ओके, और अगर वही लिगैंड अपोजिट पोजीशन पर है तो अभी हम उसे बोलेंगे ट्रांस आइसोमर। सो सिस में लिगैंड्स आर एडजेसेंट और ट्रांस में दे आर एट अपोजिट। जो भी लिगैंड आप कंसिडर कर रहे हो वो लिगैंड का पोजीशन हमें देखना है कि वो एडजेसेंट है एक दूसरे को या फिर अपोजिट है, तो उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि वेदर दैट आइसोमर इज सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर। ओके, सो आई होप इतनी चीज आपको क्लियर हो गई है। नाउ सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म हमें किस कॉम्प्लेक्सेस में देखने मिलेगा, तो उसके लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ज्योमेट्री कैसी होती है। नाउ सी, कोऑर्डिनेशन नंबर जो हम जो कॉम्प्लेक्सेस पढ़ेंगे उसमें मोस्ट ऑफ 4 और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के कॉम्प्लेक्सेस हम पढ़ेंगे। 2, 3, 5, राइट, ये भी कोऑर्डिनेशन नंबर है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट ये कॉम्प्लेक्सेस थोड़े हम कम पढ़ेंगे। ओके, ज्यादा मेन फोकस हमारा होगा 4 एंड 6। तो अगर हम बोले ML4, अभी इस कॉम्प्लेक्स में कितने लिगैंड है, 4 लिगैंड है, ठीक है। अभी अगर ये स्पेस में अरेंज होंगे तो इनके पास दो ऑप्शन है, तो ये किस तरीके से अरेंज होंगे, वेदर दे विल फॉर्म टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। ठीक है, मतलब मेटल आयन के सराउंडिंग वो इस तरीके से अरेंज होंगे जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है 4 लिगैंड और ये मेटल आयन, राइट, इस तरीके से अरेंज होंगे, या फिर वो स्क्वायर प्लेनर तरीके से अरेंज होंगे। ठीक है, इस तरीके से मेटल आयन सेंटर में और चारों लिगैंड एट 4 कॉर्नर्स। ठीक है, दैट इज स्क्वायर प्लेनर। तो आपकी कॉम्प्लेक्सेस के पास जिसमें 4 लिगैंड प्रेजेंट है उसके पास दो ऑप्शन है, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर। अगर हम ML5 की बात करें, मतलब मेटल आयन के सराउंडिंग में कितने लिगैंड, 5। ठीक है, तो ये 5 लिगैंड किस तरीके से अरेंज होंगे, आइदर डायगोनल बाय पिरामिडल और स्क्वायर पिरामिडल। ये देखो इस तरीके से 1, 2 अबाउ द प्लेन, बिलो द प्लेन, एंड दिस 3 लिगैंड्स आर इन द प्लेन। ठीक है, तो ये देखो ये ट्राइगोनल हो गया and this is above the below the plane and above the plane, so trigonal bipyramidal. Here it is square, the 4 ligands are directed at 4 corners and this one ligand is above the plane. Okay, so this is square pyramidal. तो ML5 के पास भी there are two types of geometry, diagonal bipyramidal और square pyramidal. ML6 की अगर हम बात करें तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, 6 लिगैंड है, ठीक है, तो इसकी होगी ऑक्टाहेड्रल। कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल। द 4 लिगैंड्स आर डायरेक्टेड टू 4 कॉर्नर्स, इस तरीके से। ओके, और दिस 2 ligands, one is above the plane and one is below the plane, so this kind of geometry is octahedral geometry and I request you guys please follow this. ठीक है, ये geometry आपको याद रखनी है क्योंकि ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइन, सो अभी हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन द कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री अभी हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम देखेंगे जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। ठीक है, अभी जिस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है उसकी दो तरह की ज्योमेट्री पॉसिबल है, आइदर टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर, राइट। तो अभी हम देखते हैं जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना उसकी ज्योमेट्री कुछ इस तरीके से होगी, राइट। ये मेटल आयन और 4 लिगैंड्स यहाँ पे रहेंगे, राइट, दिस येलो व्हाइट बॉल्स आर ligands and you can see all these ligands are at equal distance from each other. चारों ligands जो है वो equal distance पे है, तो यहाँ पे चारों ही ligands are adjacent to each other. Okay, यहाँ पे कोई opposite नहीं है किसके, all these ligands are adjacent to each other. So यहाँ पे हम cis trans बता सकते क्या, नहीं, यहाँ पे तो सारा cis ही cis है, right, trans तो हो ही नहीं सकता।
So that is the reason why tetrahedral complexes do not show geometrical isomerism, because all these ligands are equidistant from one another. Okay. Now अगर हम बात करें स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की, तो कौन से वाले स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बताएंगे? सो इसमें हम देखते हैं MA4, ठीक है, MA3B, MAB3, ठीक है। अभी इन सारे कॉम्प्लेक्सेस में कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, ठीक है। दिस स्मॉल a is monodentate ligand, okay, this A is monodentate ligand and this small b is also monodentate ligand, this A is also monodentate ligand and this B is also monodentate ligand. अभी यहाँ पर all these ligands are of same type, right? Small a 4. In case number 2 there are 3 types of 3A ligand और एक है आपका B. मतलब अगर एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो M कोई मेटल आयन है कंसीडर करो, और यहाँ पे NH3/3H2O इस तरीके से, ठीक है। मतलब ये एक तरह का लिगैंड है और ये दूसरे तरह के लिगैंड है. दिस इज 3 टाइम्स एंड दिस इज 1 टाइम. ओके, यहाँ पे A इज सिंगल टाइम, B इज 3 टाइम्स, राइट. तो ये जो लिगैंड है, this type, such type of complexes, they do not show geometrical isomerism. ये geometrical isomerism नहीं दिखाएंगे. क्यों नहीं दिखाएंगे? देखो स्क्वायर प्लेनर में अरेंजमेंट कैसी होती है, इस तरीके से होती है, राइट. यहाँ पे एक लिगैंड रहेगा, 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 फाइन. और बीच में रहेगा आपका मेटल आयन. अगर चारों लिगैंड आपके सेम है, एज इन कॉम्प्लेक्स नंबर 1 MA4, चारों के चारों लिगैंड A टाइप के हैं, चारों के चारों सेम है, तो आप कैसे बताओगे सिस ट्रांस कैसा है, राइट. अगर हम दूसरे टाइप की बात करें MA3B, तो 3 जगह आपका क्या है, A है, A, और एक जगह क्या है, B. तो अगेन आप कौन से लिगैंड कंसिडर करके सिस और ट्रांस बताओगे? हम नहीं बता सकते, राइट. कॉम्प्लेक्स 3 में भी वही केस है. अभी अगर हम फोर्थ कॉम्प्लेक्स की बात करें MA2B2, जिसको यहाँ पे MX2L2 लिखा है, ठीक है. मैंने यहाँ पे स्मॉल लेटर से डिनोट किया है, इन्होंने कैपिटल से डिनोट किया है, दैट्स इट, फाइन. सो सच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. ये वाला जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है ना, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा. कैसे करेगा ये देखो. दिस इज वन कॉम्प्लेक्स PT NH3/2Cl2, ओके. इसका नाम है प्लैटीन. इसका नाम क्या है, प्लैटीन, ओके. तो अगर हम कंसिडर करें दिस Cl, अभी ये Cl और ये Cl आइडेंटिकल लिगैंड हमने कंसिडर कर लिए, ओके. नाउ दिस टू लिगैंड्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर, फाइन. तो ये कौन सा आइसोमर हुआ, सिस आइसोमर. अभी सेम लिगैंड, नाउ दे आर अपोजिट टू ईच अदर. देखो डायगोनली अपोजिट है, एक्सिस के एंड पे है, राइट. सो दिस इज ट्रांस आइसोमर. जरूरी नहीं है कि आपको Cl ही कंसिडर करना है, यू कैन कंसिडर अमोनिया ऑल्सो, NH3 ऑल्सो भी आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है. सो नाउ ये जो सिस आइसोमर है और इस कंपाउंड का नाम है प्लैटीन, तो ये हो गया सिस प्लैटीन. ये क्या हो गया, सिस प्लैटीन. और जो सिस प्लैटीन है ना, ये एंटी कैंसर ड्रग है. तो जो जैसे हमने बोला था कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, दे आर यूज इन मेडिसिनल केमिस्ट्री, राइट. तो सिस प्लैटीन इज एंटी कैंसर ड्रग, याद रखना, एमसीक्यू में कई बार पूछा गया है, ठीक है. तो सिस प्लैटीन इज एंटी कैंसर ड्रग. सो इस तरीके की कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं, दे शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. और ये जो कॉम्प्लेक्सेस है, they do not show geometrical isomerism. तो कभी कभार MCQ में क्वेश्चन आ जाएगा कि which of the following complex show geometrical isomerism. तो उसमें just don't memorize your examples, क्योंकि अगर एग्जाम्पल में कहीं ऊपर नीचे हो गया या दूसरा एग्जाम्पल दे दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, राइट. तो लर्न बाय दिस जनरल फॉर्मूलाज कि अगर इस तरीके का कॉम्प्लेक्स है तो नहीं देगा, ये है तो नहीं देगा, लेकिन इस टाइप का है तो शो करेगा, राइट. So that will be better.
इन कोऑर्डिनेशन 6 में कौन से कॉम्प्लेक्सेस आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगी, अभी हम वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देख लो कि कौन से कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और 3 है, ऐसे कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएंगे। टेट्राहेड्रल जिनकी ज्योमेट्री है वो कॉम्प्लेक्सेस भी नहीं दिखाएंगे। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और उनमें ये वाले कॉम्प्लेक्सेस है MA4, MAB3, MA3B, तो भी वो नहीं दिखाएंगे, हमने पढ़ाई है, राइट। अगर हम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री वाली बात करें, मतलब जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, तो इसमें MA6 ये वाला कॉम्प्लेक्स आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। MA5B ये वाला कॉम्प्लेक्स भी आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं MA4B2 पर, मतलब A टाइप के 4 लिगेंड और B टाइप के 2 लिगेंड, ठीक है। ऑल दिस आर मोनोडेंटेड लिगेंड। तो आप देख सकते हो कोऑर्डिनेशन नंबर इज स्टिल सेम, इट इज 6, ओके। अभी ये कॉम्प्लेक्स है जहां पे MA4B2 आपका ये है, क्या बोलते हैं उसको, जनरल फॉर्मूला, ठीक है। सो अभी क्या होता है ना, ऑक्टाहेड्रल वाले केस में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें सिस पोजीशन कौन सी है और ट्रांस पोजीशन कौन सी है, ठीक है। तो लेट मी एक्सप्लेन इट फर्स्ट टू यू कि सिस कौन सी होती है और ट्रांस कौन सी होती है। ऑक्टाहेड्रल की कुछ ऐसी होती है ज्योमेट्री, राइट। इसको अभी हम नंबरिंग कर देते हैं, दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके। तो अभी इसमें क्या होगा देखो, इसमें अगर आपके जो लिगैंड आपने कंसिडर किए हैं वो लिगैंड एक्सिस के अपोजिट में है, मतलब जो एक्सिस आपके प्लेन को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। कंसिडर दिस इज योर प्लेन हॉरिजॉन्टल, ओके। और आपके चारों कॉर्नर पे यू हैव 4 लिगैंड्स, 1 2 3 एंड 4। वन इज बिलो द प्लेन एंड वन इज अबाउ द प्लेन, राइट। तो जब आपका डायगोनली अपोजिट, मतलब इस तरीके से आपका लाइन बाइसेक्ट हो रहा है और इसके एंड पे अगर आपके आइडेंटिकल लिगैंड्स है तो दैट इज ट्रांसपोजिशन, ठीक है। मतलब आपके आइडेंटिकल लिगैंड अगर 2/4 पोजिशन पे है तो वो ट्रांस आइसोमर है, अगर वो 1/3 पोजिशन पे है तो अगेन दैट इज ट्रांस, अगर 5/6 पर है तो अगेन दैट इज ट्रांस आइसोमर। और इसके अलावा अगर आपके लिगेंड जो आपने कंसिडर किए हैं वो किसी और पोजीशन पे, लाइक दे आर एट फर्स्ट एंड फिफ्थ पोजीशन, तो दैट इज सिस। 2 and 5 तो अगेन दैट इज सिस। इनफैक्ट अगर वो फर्स्ट पोजीशन और सेकेंड पोजीशन पर भी है तो वो पोजीशन कौन सी होगी, सिस पोजीशन होगी, सिस आइसोमर होगा, ठीक है। 1 और 3 पे है तो ट्रांस, लेकिन 1 और 6 पर है तो इट इज सिस, ओके। 1 और 4 पे है तो सिस। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर ये 3 एक्सिस के एंड पे है तो इट इज ट्रांस, इसके अलावा कहीं पर भी है तो इट इज सिस, फाइन। अभी देखो ये MA4B2, अभी हमने यहाँ पे B लिगैंड अगर कंसिडर किया है, सो दिस पोजिशन इज सिस पोजिशन, राइट। ये ट्रांस पे है क्या दोनों, नहीं। दिस अगेन दे आर हियर नाउ, ये भी एक दूसरे को एडजेसेंट पोजीशन पे है, ठीक है, सिस है। इन केस नंबर 2 दिस बी देखो एक्सिस के एंड पे है, सो दिस इज ट्रांस, इट इज हियर, इट इज हियर, दिस इज ट्रांस। ऐसे टाइप पे अगर प्रेजेंट है तो वो ट्रांस है, लेकिन इस तरीके से प्रेजेंट है तो वो सिस है, ओके। मतलब देखो ये 5th पोजीशन हुआ, ये 4th पोजीशन हुआ, 4th एंड 5th पे भी रहा तो कौन सा है, सिस है। अगर वो यहाँ पे रहता फर्स्ट पे और 6 पे तो भी वो 6 सिस ही रहता, ठीक है। यहाँ पे रहता तो सिस ही रहता, तो एडजेसेंट पोजीशन होती है, ठीक है। सो दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, क्योंकि बहुत बार कंफ्यूजन के लिए ऐसी चीजें पूछ लेते हैं। अभी एग्जांपल देखते हैं MA4B2 कॉम्प्लेक्स का। तो ये एग्जांपल है CONH3/4Cl2, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे अगर हम जो लिगैंड कंसिडर करते हैं वो Cl कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है।
दिस Cl इज हियर एंड हियर, तो दोनों कैसे एक दूसरे को एडजेसेंट है, तो ये कौन सा आइसोमर हुआ, सिस आइसोमर हुआ। ट्रांस में क्या होगा, दिस Cl इज वन इज हियर वन इज हियर, तो दोनों अपोजिट है एक दूसरे को, राइट, सो दिस इज ट्रांस आइसोमर। अभी क्या होता है ना, एग्जामिनेशन में आपको पूछ लेंगे कि आप ड्रॉ करके दिखाओ सिस आइसोमर एंड ट्रांस आइसोमर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, ओके, डायरेक्टली आता है क्वेश्चन, ड्रॉ द ट्रांस आइसोमर फॉर दिस कॉम्प्लेक्स, तो आपको ट्रांस आइसोमर ड्रॉ करते आना चाहिए, राइट, सिस आइसोमर ड्रॉ करते आना चाहिए। और ये कब आएगा, जब आपको पोजीशंस पता होगी। अनटिल अनलेस आपको पोजीशन नहीं पता है तो यू विल गेट कंफ्यूज्ड कि अभी ड्रॉ कैसे करना है, राइट। अभी एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं हम, CO NH3/4 NH3/4 ClBr, ओके, ये कॉम्प्लेक्स लेते हैं। नाउ दिस इज अनदर टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे Ma4B2 हमने लिया ये वाले कॉम्प्लेक्स में। अभी ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, इसका जनरल फॉर्मूला अगर हम देंगे तो दिस इज Ma4BC, ओके, ये इस टाइप का कॉम्प्लेक्स है। देखो 4 टाइप का तो NH3 हो गया, तो Ma4 हो गया, B इज योर Cl एंड C इज योर Br, राइट। तो ये है एग्जाम्पल। अगर हमको इसका ट्रांस आइसोमर निकालना है तो अभी हम कैसे निकालेंगे, दिस इज CO, राइट, ये हो गया आपके 4 लिगैंड एंड दिस इज 1, दिस इज 2, ओके। तो अभी यहाँ पे NH3 आएगा। अब कोई भी लिगैंड कंसिडर कर लो, ओके, जो आपको ट्रांसपोजिशन पे निकालना है एक दूसरे के, फाइन, NH3 NH3 and here it is ClLBr, फाइन। सो ये हो गया आपका ट्रांस आइसोमर। इसी तरीके से आप सिस भी निकाल सकते हो, राइट। कंसिडर हमने ये अमोनिया कंसिडर कर लिया था, तो ये हम ट्रांसपोजिशन पे निकाल दिया, सो दिस इज ट्रांस आइसोमर। आई होप आपको चीजें क्लियर है। अगर सिस निकालना है तो क्या करेंगे, हम दोनों अमोनिया को सिस पोजीशन पे, एडजेसेंट पोजीशन पे डाल देंगे, ओके। यहाँ पे हम ClBr अगर कंसिडर करते हैं तो ये देखो, ये Cl और ये Br, ये भी ट्रांस पे है। अगर सिस निकालना है, ये दोनों लिगैंड को कंसिडर करते हुए, तो इन दोनों को एडजेसेंट पोजीशन पे ला लो, दैट्स इट, फाइन। सो इस तरीके के लिगैंड्स भी आपको, इस तरीके के कॉम्प्लेक्स अगर आते हैं तो उसका आइसोमर भी आपको निकालते आना चाहिए, फाइन। एक और तरीके का कॉम्प्लेक्स है MAA/2B2, ओके, MAA/2B2। अभी व्हाट इज दिस AA, कैपिटल AA, दिस इज सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड। अभी कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, तो ये 6 में से कुछ बाइडेंटेड लिगैंड भी हो सकते हैं, कुछ मोनोडेंटेड लिगैंड भी हो सकते हैं, राइट। तो अगर AA है तो दिस इज बाइडेंटेड लिगैंड, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड, मतलब जहाँ पे दोनों डोनर एटम सेम है। नाउ यहाँ पे अभी हमने लिया एग्जाम्पल इज CO En/2 Cl2, राइट। सो En जो है, दिस इज बाइडेंटेड लिगैंड एंड दिस इज सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड। क्यों, क्योंकि En में जो दोनों डोनर एटम है वो नाइट्रोजन ही है, राइट। यू कैन सी हियर नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन। अगर दोनों डोनर एटम डिफरेंट होते हैं तो हम उसे बोलते हैं अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड, और हम उसे डिनोट करते हैं AB से, ठीक है। AA मतलब सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड एंड सिंगल अल्फाबेट मतलब मोनोडेंटेड लिगैंड, जो अभी तक हम पढ़ते ही आ रहे हैं, राइट। सो दिस इज आवर एग्जांपल CO En/2 Cl2। तो अभी देखो इसमें क्या हो रहा है, ये चारों, दिस इज अबाउट द प्लेन, दिस इज बिलो द प्लेन। अभी इथिलीन डायमीन मतलब ये दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है विथ योर मेटल आयन, राइट। तो दिस इज नाइट्रोजन और ये यहाँ पे CH2 दोनों नाइट्रोजन को बॉन्ड करके रखा है, राइट। सो इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया इस तरीके से, और यहाँ पे दूसरे इथिलीन डायमीन ने बॉन्ड बनाया, राइट। तो दिस टू आर एडजेसेंट टू ईच अदर। अगर हम Cl को कंसिडर करें, मोनोडेंटेड लिगैंड आपको कंसिडर करना है, तो देखो ये दोनों भी एडजेसेंट है, तो ये आइसोमर कैसा हुआ, दिस इज सिस आइसोमर, राइट। ये आइसोमर कैसा है, सिस आइसोमर है। यहाँ पे अगर ट्रांस की बात करोगे
तो देखो यहाँ पे दिस Cl एंड दिस Cl आर अपोजिट टू ईच अदर, तो ये हो गया आपका ट्रांस आइसोमर, और बचा हुआ जो है En वो इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। डोंट फॉरगेट टू गिव दिस, ये ऐसे निकालना मत भूलना इन बाइडेंटेड लिगैंड, क्योंकि क्या होता है ना, अगर आपने नहीं निकाला तो इट इंडिकेटेड कि यहाँ पे कुछ और है और ये बाइडेंटेड लिगैंड नहीं है, सो दैट विल क्रिएट अ ह्यूज मेस। तो वैसे मत करना, जब बाइडेंटेड है तो डोंट फॉरगेट कि आपको यहाँ पे यहाँ के आइटम्स लिखने होते हैं, CH2 इस तरीके से। ओके, सो ये है आपका सिस ट्रांसफॉर्म ऑफ COEN/2 Cl2। फाइन, आई होप ये चीजें क्लियर हो रही है आपको। तो आपको ना ये कॉम्प्लेक्सेस याद रखने हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस याद रखने हैं और उसका एक एक एग्जाम्पल याद रखना है। अगर आप ये ऐसे जनरल फॉर्मूलाज याद रखते हो तो इससे फायदा क्या होने वाला है, अगर इसके अलावा, इस एग्जाम्पल के अलावा आपको कोई दूसरा एग्जाम्पल आता है एग्जामिनेशन में, तो आप उसको अच्छे से टैकल कर पाओगे कि हाँ, अगर इस टाइप का फॉर्मूला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देता है, तो अगर इससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल है तो दैट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ओके, सो दैट विल हेल्पफुल। अभी एक और तरह का कॉम्प्लेक्स है MA3B3, मतलब A टाइप के 3 लिगैंड और B टाइप के 3 लिगैंड, और दोनों ही मोनोडेंटेड लिगैंड है, राइट? तो whether they will show geometrical isomerism or not, so yes, they will show geometrical isomerism। कैसे? जो अभी हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है वो है CONH3/3 NO2/3। फाइन, तो अभी देखो क्या हो रहा है, इस तरीके की हमने कुछ अरेंजमेंट्स करके रखी है, राइट? हियर दिस NH3 यहाँ पे हमने ऐसे दिखा है और NO2 हमने इस साइड से दिखा है, ठीक है? तो अगर आपके 3 डोनर एटम ऑफ द सेम लिगैंड्स, ठीक है, मतलब अमोनिया अमोनिया अमोनिया, डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन, ऑक्यूपाई एडजेसेंट पोजीशन, okay, at the corners of octahedral phase, so that is facial isomer। इस टाइप, इसमें ना सिस ट्रांस नहीं हो सकता क्योंकि तीनों तीनों लिगैंड है, मतलब दोनों ही लिगैंड 3-3 बार है, राइट? तो इसमें सिस ट्रांस नहीं कर सकते हम। इसमें हम क्या करते हैं, फेशियल एंड मेरिडोनल, ये दो टाइप के आइसोमर्स होते हैं इन सच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस MA3B3। तो देखो अगर हम NO2 को कंसिडर करें, सो दिस NO2 इज प्रेजेंट एट वन कॉर्नर, ये ऑक्टाहेड्रा का एक कॉर्नर है, राइट? ये दूसरा कॉर्नर है, ये एक कॉर्नर है, इसको हम फेस बोलते हैं, ठीक है? इसको हम क्या बोलते हैं? फेस बोलते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज फेशियल आइसोमर। अगर आपके फेस पे तीनों सेम तरह के लिगैंड है, आइडेंटिकल लिगैंड है, तो दैट इज फेशियल आइसोमर, ठीक है? तो ये है आपका NO2 NO2 NO2, तो ये हुआ आपका फेशियल आइसोमर। अभी यहाँ पे NH3 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 है, तो ये है आपका फेशियल आइसोमर, राइट? इफ अगर ये लिगैंड्स ऑक्टाहेड्रन के मेरिडियन के अक्रॉस प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब दिस इज योर मेरिडियन, ये वाला, राइट? अगर इसके अक्रॉस प्रेजेंट है, मतलब फेस पे प्रेजेंट नहीं है। अभी देखो 2NO2, जो 2NO2 है वो एक दो इधर है और एक इधर है, मेरिडियन के साइड में, राइट? मेरिडियन के अराउंड। सो सच टाइप ऑफ आइसोमर इज नोन एज मर आइसोमर और मेरिडोनल आइसोमर, ठीक है? तो ये चीज आपको याद रखनी है, इस पे भी क्वेश्चंस आ सकता है MCQs में। फाइन, next is optical isomer, which is also known as enantiomers. Now, what are enantiomers? How they rotate the plane polarized light, plane polarized light, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं डिटेल में, है ना? So, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स और आयन जो भी हम पढ़ेंगे, इफ दे हैव नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ठीक है, सो दैट इज enantiomers of each other। अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है तो वो enantiomers है, right? And this enantiomers, they have identical properties, but the only difference is that the how they rotate the plane polarized light, how they respond to plane polarized light, right? That is the only difference in enantiomers। So अगर आपका enantiomer राइट साइड में प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रोआइसोमर बोलते हैं, राइट? और लेफ्ट साइड में रोटेट कर रहा है तो हम उसे बोलते हैं लीवो आइसोमर। ओके, ये सारी चीजें तो क्लियर है ना हमारी?
right? And enantiomers are chiral, right? Mirror image of hand, right? ये आपका hand है, right hand is the mirror image of left hand, okay? और दोनों ही एक दूसरे पे नॉन सुपर इम्पोजिबल है. सो दैट इज द थिंग. यही चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है जब हम कॉम्प्लेक्सेस पढ़ेंगे. नाउ जैसे हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 के लिए, उसी तरीके से हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी पढ़ेंगे फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड 6. अभी जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4, दैट विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ओके? बट वो इतने सारे हैं और वो इतने रिजॉल्व भी नहीं हुए हैं अभी तक, तो इसीलिए उसको पूरा डिटेल स्टडी में हमको नहीं पढ़ना है, ओके? इफ वी टॉक अबाउट स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. क्यों नहीं शो करते? हमने इन हैलो अल्केन्स में कंडीशन पढ़ी थी फॉर ऑप्टिकल आइसोमर्स. वो ये था कि जो आपका कॉम्प्लेक्स है, जो आपका कंपाउंड है, वो कायरल होने के लिए क्या क्या चाहिए? वो असिमेट्रिक होना चाहिए, द वेरी फर्स्ट थिंग, राइट? उसमें कोई भी किसी भी तरह की सिमेट्री नहीं होनी चाहिए. सेकेंड थिंग, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होने चाहिए. अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है लेकिन उसमें सिमेट्री है, तो वो कंपाउंड कायरल है क्या? नहीं है. सो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है ना, दैट इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज देयर. क्योंकि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कैसा होता है? ऐसा होता है. तो यहाँ पे क्या होती है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है, राइट? अगर हम यहाँ से प्लेन डालोगे, ऐसा प्लेन डालोगे, तो यू विल गेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री. तो दैट्स व्हाई स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डेफिनेटली दे शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ओके? और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं. तो कंपैरिजन याद रखना, okay? Tetrahedral complexes show optical isomerism, they do not show geometrical isomerism. Square planar complexes do not show optical isomerism, they show geometrical isomerism. Fine. अगर हम octahedral complexes की बात करें, तो they will show optical isomerism. कैसे? एग्जाम्पल हम देखते हैं. MAA/3. अभी जैसे मैंने बोला, this AA denotes bidentate ligand, right? यहाँ पे एग्जाम्पल हम लेते हैं इथिलीन डायमीन का, इथिलीन डायमीन बाय 3. तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, 6 कोऑर्डिनेट्स बॉन्ड बनेंगे बाय 3 इथिलीन डायमीन, राइट? इस तरीके से यहाँ पे एक, यहाँ पर एक और यहाँ पे एक. फाइन. नाउ इसका मिरर इमेज अगर हम देखें, दिस इज मिरर, तो ये जो दो साइड का है ये इस साइड आ जाएगा, राइट? और ये जो है ये इस साइड चला जाएगा. सो this isomer rotate the right side, so that is D form, dextroisomer हो गया ये. and this one rotate the light to left side, तो ये हो गया आपका L form, Leo form. okay, now this is cis isomer. ये cis isomer में D और L form है, right? अभी इसमें ट्रांस हो सकता है क्या? इसमें ट्रांस हो ही नहीं सकता, राइट? तो इसीलिए जब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमने पढ़ा, तो उसमें हमने ये कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ा, क्योंकि दैट विल, दे डू नॉट शो सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म. ठीक है? ये 3D में आप देख सकते हो. देखो कुछ इस तरीके का कॉम्प्लेक्स होता है 3D में. अगर हम देखो, दिस इज 2D अरेंजमेंट, दिस इज 3D अरेंजमेंट. ये देखो, दिस इज बिलो द प्लेन, दिस इज अबाउ द प्लेन, और ये चारों इन द प्लेन होते हैं, राइट? तो दिस इज वन इथिलीन डायमीन, दिस इज सेकेंड इथिलीन डायमीन, एंड दिस इज थर्ड वन. और इसको मिरर में देखोगे तो ऐसा दिखेगा. देखो ये जो दो साइड है वो इस साइड आ गया, जो अभी राइट साइड में थे वो अभी मिरर के बाद लेफ्ट साइड में आ गया, और जो लेफ्ट साइड में था वो राइट साइड में आ गया, राइट? सो जब हम ये कॉम्प्लेक्स को उठा के, इसके ऊपर रखेंगे, तो विल गेट नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज. सो दैट्स व्हाई दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. ओके, दूसरा जो कॉम्प्लेक्स है ऑक्टाहेड्रल में, वो ये वाला है MAA2A2. अभी ये इसमें ये वाला कॉम्प्लेक्स हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी देखा था. दे शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, राइट? सो इसमें अगर हम ट्रांस की बात करें, इसका ट्रांस कैसे होगा? दिस इज द सिस फॉर्म, राइट? CL. okay, this CL and this CL are adjacent to each other, so this is cis isomer. अगर हम सेम कॉम्प्लेक्स का ट्रांस निकाले तो कैसा होगा?
देखो इस तरीके से होगा, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, राइट, और यहाँ पे आएगा आपका नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, राइट, इस तरीके से En, और दो दूसरा वाला इथिलीन डायमीन इस साइड आएगा N N। सो दिस इज ट्रांस आइसोमर। अभी मुझे एक बात बताओ, अगर हम ट्रांस आइसोमर का मिरर इमेज ड्रॉ करते हैं तो हमें कुछ डिफरेंस मिलेगा? हमें मिलेगी क्या नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज? नहीं मिलेगी, हमें सेम मिरर इमेज मिलेगी, इसी तरीके की मिरर इमेज हमें यहाँ पे मिलेगी। सो दैट्स व्हाई ट्रांस जो आइसोमर है, इस कॉम्प्लेक्स का जो ट्रांस आइसोमर है, दैट डू नॉट एग्जिस्ट इन एंशियोमर्स, उसके कोई ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं है। लेकिन जो सिस है उसके ऑप्टिकल आइसोमर्स है, क्योंकि ये देखो ये सिस फॉर्म है, ठीक है, ये सिस फॉर्म है और ये इसका मिरर इमेज है। तो ये देखो दो Cl यहाँ पे थे इस साइड में, अभी इस साइड आ गए, और इथिलीन डायमीन इस साइड आ गया, राइट। अगर हम इस कॉम्प्लेक्स को उठा के इस पे रखे तो हमें नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज मिलेगी, राइट। हमें Cl पे Cl मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। हमें En पे En मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। सो दैट इज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, राइट। सो ये हुआ डी आइसोमर और ये हुआ एल आइसोमर। दैट्स व्हाई इट इज से दैट कि जो इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्सेस है ना, उसमें सिर्फ सिस आइसोमर्स होते हैं जो आपके इनैंशियोमर्स बनाते हैं, ठीक है, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ओनली सिस फॉर्म। ट्रांसफॉर्म ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा इन सच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ओके। तो ये चीज याद रखना, देयर आर सम octahedral complexes which exist both as geometrical isomers and optical isomers. This is one example of it, okay. सो आई होप आपको क्या याद रखना है क्या नहीं याद रखना है ये सारी चीजें समझ में आ गई है। जस्ट मेमोराइज दिस जनरल फॉर्मूलाज और उसका एक एक एग्जाम्पल के कैसे होता है, एंड ट्राई टू प्रैक्टिस and draw the structure of cis isomer, trans isomer, optical isomer, mirror image कैसा होगा उसे ड्रॉ करने की कोशिश करो। व्हाट आर डेफिनेशंस याद कर लो, आयनाइजेशन आइसोमर, हाइड्रेट, सॉल्वेट, लिंकेज, देन स्टीरियो आइसोमर का स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर आल्सो नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, तो कभी कभी क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग भी आ जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, ओके। कौन से कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, कौन से कॉम्प्लेक्सेस शो नहीं करते हैं, कौन सी ज्योमेट्री आपको लाइक स्क्वायर प्लेनर कौन सा शो करती है, टेट्राहेड्रल कौन से शो करती है, ऑक्टाहेड्रल में क्या डिफरेंस है, कौन से कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं, कौन से ऑप्टिकल, और जो दोनों दिखाते हैं फिर उसमें सिस फॉर्म में आपको DNL मिलेगा या ट्रांस में DNL मिलेगा। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके से आएंगे। सो अब हर तरीके से रेडी रहो, ठीक है। अगर आपको एग्जाम्पल देके पूछा जाए तो भी आपको आना चाहिए, और आपको ड्रॉ करने के लिए पूछा जाए तो भी आपको आना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आइसोमेरिज्म। यहाँ पे हम आइसोमेरिज्म वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं, आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हमारा स्ट्रक्चरल भी हो चुका है और हमारा स्टीरियो भी हो चुका है, ठीक है। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस वन, सो प्लीज लेट मी नो, ओके। वी विल सॉल्व आवर डाउट्स सो दैट कि आपको जब पढ़ो तो कोई दिक्कत ना आए, ओके। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।